When you talk, you're only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. By Dalai Lama. We are always operating from our preconceived ideas, from our own belief systems, which is extremely strong and having all our deeper truths stored within our actions, reactions, and all our conscious, unconscious behaviors, and exactly the way we behave and act in that way only. So let's take an example. Can everybody see me? Show your hands. Can we see can you see my hands? We have to take our hands, fold our hands like this. Okay, great. So now tell me which is the thumb which is on the top and which is the thumb on the bottom. Please type it in the chat box. Left on the top. Okay. So Sunil says left is on the top. How many of you are saying right on the top? Me. Someone here right on the top? Okay, Sachin right on the top. Okay, great. So most of the people have their right thumb like this on the top. So my right hand is this one. So right hand is on the top. Now, why is it that my right hand is on the top and my left hand is on the bottom? So because this is the past behaviors that I have and I'm a right-handed person. So which means that all the things I'm doing is from the right hand, and that is why it is more commanding. So all our belief systems are all there. So we have all preconceived thoughts. But to break the clutter of all this, what do we need to do? We need to meditate. We need to do certain breathing exercises. So here we'll start with Sachin sir. Sachin sir is going to teach us how to meditate. So before we start, I would like to introduce you all to Sachin sir. Sachin sir has been working in stock market since many years. He's been a research analyst, and his profession is an equity technical analyst, and he's a healer by passion. He's working in the institutional department and catering to FIIs, DIIs, and chief managers of banks for their positional and short-term trading, contributing towards society by healing people from disease, removing trading blocks, investing blocks, financial blocks, relationship blocks, by clearing their negative energies through one or a mix of therapies which he practices. So he practices many therapies like yoga, numerology. He's a certified Access Bars practitioner, international certified Access Bar facilitator, international certified Access Bar facelift practitioner, international certified Access Foundation practitioner. He has done Reiki, and he's a Tibetan, he's a certified Tibetan singing bowls practitioner. In yoga, he has done Ashtang Yoga, which follows Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. He has learned Shuddhi Kriya like Kapalbhati, Dhatu, Jalaneti, and Sutraneti. So please clap your hands and let's welcome Sachin sir. Hello, Sachin sir. Hello. So how are you all? Yeah, this session will be very interactive, and I want to use this chat box feature very nicely. So we will declare some surprise at the end as well. Who will be the most active participants? So we will ask many questions and use the you use the opportunity to use the chat box. तो ऐसा ना हो जाए कि आप सो जाए थे. सेशन विल बी वेरी इंटरैक्टिव एंड हम बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखेंगे आज, एंड स्पेशली हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली. लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा, हमने बिगनर लेवल ब्रीदिंग किया था उसमें,
टू रिकैप, हमने 4 मुद्राओं के साथ में ब्रीदिंग टेक्निक सीखी थी। बहुत ही बिगनर्स लेवल था। आज हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे और आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी सीखेंगे, विच इज आवर नेचुरल वे ऑफ मेडिटेटिंग। तो लास्ट टाइम काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सर मेडिटेशन करना है, हमें मेडिटेशन सीखना है। तो मैंने सोचा कि मेडिटेशन तो बहुत काफ़ी एडवांस लेवल हो जाती है। जैसे अभी पूजा जी ने कहा कि जो मैंने अष्टांग योग सीखा है, तो अष्टांग योग के क्रोनोलॉजी में जो हम मेडिटेशन वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, तो 7वें नंबर पे आता है। तो पहले होता है यम, फिर नियम, ठीक है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान को हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन, ठीक है, एंड समाधि, दैट्स द अल्टीमेट लेवल, एनलाइटमेंट एंड ऑल दैट। तो ये जो लेवल है जो बहुत ही कैजुअली लोग यूज करते हैं मेडिटेशन, तो ये सारे पहले स्टेजेस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। आपका पहले पोस्चर राइट होना चाहिए। अगर आपको मेडिटेशन में कहीं आगे जाना है, you should know how to breathe. There are many techniques how to breathe. तो ब्रीदिंग टेक्निक्स आपके पास करेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आप वो लेवल पे जाके पहुंचोगे। उसके पहले भी ध्यान करने से पहले आपको कंसंट्रेशन का एक लेवल होता है, जिसको हम लोग धारणा बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ना चाहिए। कंसंट्रेशन का लेवल जब आपका हाई रहेगा, उसके बाद में आपका जो ये लेवल आएगी, मेडिटेटिव लेवल, जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है, वो लेवल्स आपकी आएगी। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि बिकॉज अभी बहुत फैशन में भी आ गया कि अरे सब लोग मेडिटेशन करें, चलो हम लोग भी मेडिटेशन करें, लेकिन सबको समझता नहीं कि एक्चुअली मेडिटेशन क्या होता है। बस आंख बंद कर ली तो मेडिटेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर भी ना, आज मैंने बिकॉज रिक्वेस्ट था लोगों का, तो मैं बोला ठीक है चलो एक नेचुरल जो मेडिटेशन होती है वो सीख लेंगे हम। तो जो नाम है मेडिटेशन का वो है सोहम, सोहम मेडिटेशन। अब मैं, हाँ, तो अब मैं चैट बॉक्स का यूज करने को बोलूंगा आप लोगों को। कुछ भी तकलीफ है सुनने में तो मैं रिपीट करूंगा। अगर क्लियर कट सुनाई दिया है, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा ओके, जोर से। तो अगर क्लियर कट सुनाई दिया आपको, सोहम मेडिटेशन सीखेंगे आज हम, ठीक है? बिल्कुल। तो सोहम मेडिटेशन सीखेंगे। मुझे थम्स अप चाहिए आप सब लोगों को, तो चैट बॉक्स में थम्स अप कर लीजिए या फिर यस कर दीजिए। ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग यस। ग्रेट, ग्रेट। यहाँ पे और भी एक चीज का मैंने ध्यान रखा हुआ है कि हम काफी रिलीजियस ना चले जाए, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं कि काफी मल्टी लैंग्वेज लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ हिंदू धर्म या ऐसा कुछ वैसा कुछ भी नहीं यूज होगा, एकदम प्योर फॉर्म रहेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो सो और हम, ये जब दो चीज हम लोग जब चेक करेंगे, इसका मतलब होता है आई एम दैट। तो सोहम मीन्स आई एम दैट। तो अगर क्लियर है तो मुझे वापस से यस चाहिए आप लोगों का। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये ट्रेडिशनल वे है, तंत्रा एंड वेदांता, इनका कॉम्बिनेशन। सोहम मेडिटेशन जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, ये एक ब्रेथ मेडिटेशन है एंड मंत्रा मेडिटेशन भी है। लेकिन खाली ये मंत्रा मेडिटेशन जो हम लोग नॉर्मली जो सुनते हैं, जैसे लोग चैंट करते ना ओम 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 करके, तो ये बाहर जो आवाज आने वाली मेडिटेशन है, इसमें आवाज नहीं आएगा, बस इतना ही। तो इतना साइलेंट मेडिटेशन और इतना इफेक्टिव मेडिटेशन है ये कि आप चलते चलते कर सकते हो। आप कहाँ पे भी बैठे हो वहां पे कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा कुछ टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए इसको मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी बोलता हूँ, बिकॉज ये आपको माइंडफुलनेस रहने में हेल्प करेगा। तो मंत्रा होता क्या एक्चुअली, बिकॉज मंत्रा में लोग नॉर्मली क्या होता है कि साउंड जो एक सीक्रेट साउंड रहता है, उस वर्ड का हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है। और ये योगिक मेडिटेशन का सेंट्रल पार्ट होता है मंत्रास का, ठीक है। इसके लिए आज मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज योगिक मेडिटेशन में ये भी इंक्लूड है। तो मंत्रा का पहले हम लोग मीनिंग जान लेंगे। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा ना बेस लेवल पे, बिकॉज मैंने चेक किया कि बहुत लोग मेडिटेशन में नहीं है,
तो थोड़ा सा एक अप लेवल पे लेके चले जाता हूँ आपको कि मंत्रा होता क्या है। तो मंत्रा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मन और एक त्रा, इस दो पार्ट में। तो मन का जो मतलब होता है वो लिटरली जो माइंड है वो नहीं है, इट इज टू रिफ्लेक्ट, बी अवेयर, मन का मतलब ये है। और त्रा का मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, टूल फॉर। सचिन सर तो थोड़ा सा लाउडली सर, ओके, थोड़ा सा और लाउडली। हाँ अच्छा। तो मंत्रा का जो हम लोग ने मीनिंग अभी सुना था कि मंत्रा, मन का मतलब है टू रिफ्लेक्ट, बी अवेयर। और त्रा का मतलब जो है टूल फॉर, तो त्रा इज टूल फॉर, ठीक है। सो अ मंत्र इज अ टूल फॉर रिफ्लेक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ अवेयरनेस and is used for both concentration and contemplation on the source. source क्या है हमारा, ऊपर, यूनिवर्स बोल सकते हैं उसको हम। तो ये दो कॉम्बिनेशन है। तो सोहम क्या इंडिकेट करता है? देखो सोहम क्या होता है, मैं पहले आपको ये आज थोड़ा सा पूरक और रेचक में थोड़ा लेके जाना चाहूंगा कि बिकॉज अब जब आप योग सीख ही रहे हैं तो थोड़ा सा उनके टर्म्स भी थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू कि अगर आप किसी योग गुरु को कभी आगे जाके सुने तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पूरक मतलब इनहेलेशन, when you inhale from your nose, very specific, when you inhale from nose it is purak, and when you exhale from nose it is rechak. So purak, rechak, inhalation purak, exhalation rechak. अब इन दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसको हम लोग कुंभक बोलते हैं। तो when you inhale and stop, so वो जो स्टॉप जो पीरियड रहता है उसको हम लोग कुंभक बोलते हैं, और वो कुंभक ही प्राणायाम होता है। और ये बहुत ही एडवांस लेवल पे करते हैं जो आज हम लोग नहीं करने वाले हैं। राइट, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी के लिए मैंने ये कहा है आपको। बिल्कुल सो बिल्कुल सर। पूरक, कुंभक एंड देन रेचक, और इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सो अगर आपको 2 सेकंड लगा पूरक लेने में, तो आपका जो कुंभक रहेगा इट विल बी 5 टाइम्स, एंड आपका जो रेचक रहेगा डबल देन जो आपने पूरक किया था। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे, सॉरी 4 टाइम्स। तो अगर मुझे 1 सेकंड लगा इनहेल करने में, तो 4 सेकंड रहेगा कुंभक एंड 2 सेकंड फॉर एक्सहेलेशन। तो अभी कुंभक को हटा देते हैं, 1:2 कर देते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में सांस अंदर ली और छोड़ते टाइम 2 सेकंड लगना चाहिए। तो कोई भी घाई नहीं करना है, बहुत ही आराम से हमें आज का जो सेशन है करना है। इट इज इंटरमीडिएट लेवल। पिछली बार जो किया था दैट वाज वेरी बिगनर, इसके लिए मैंने इतना डीप में नहीं बताया था आप लोगों को। अब ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, बिकॉज जैसे ही आप इसको कुंभक से जोड़ेंगे सीधा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। सर एक एक मैं सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? पिछली बार जो हम लोगों ने वेबिनार किया था, योगिक मेडिटेशन किया था, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? प्लीज चैट बॉक्स पे हाथ या बोलिए कि हाँ मैंने किया। ओके ओके, आप सभी को मैं बता दूं कि ये पूरा जो वीडियो था पिछले वाला वो मेरे चैनल पर है। आप लोग प्लीज अपने घरों पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है मेडिटेशन रोज करने वाली चीजें हैं। हफ्ते में एक बार नहीं कि मैं और सचिन सर आए हैं उस दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भूल जाइए। ठीक है, रोज कीजिए अपने घरों पे। वो वीडियो इसीलिए ही वहां पे डाला गया है कि आप सुबह जब उठते हो नींद से उठने के बाद हाथ मुंह धोकर आप तुरंत से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सबसे पहली चीज जो सुबह करनी चाहिए वो मेडिटेशन ही करना चाहिए। आप कोई भी और चीज मत कीजिए, सुबह सुबह सबसे पहले यही कीजिए। सर कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। ये तो एक्चुअली मुझे क्यूरियोसिटी थी, बट मुझे ये पता नहीं था कि पिछले बार भी कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, वो सेम ही लोग हैं या न्यू लोग हैं, तो नहीं इसलिए नहीं, मैंने बहुत क्वेश्चन नहीं सारे किया। कंटिन्यूड वाले लोग हैं, बहुत सारे वेरी गुड, लोगों वेरी ने जो पिछली बार ज्वाइन किया था वो गुड। आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वेलकम टू ओल्ड पार्टिसिपेंट्स एंड वेलकम टू न्यू पार्टिसिपेंट्स एज वेल। तो यस, जैसे पूजा जी ने कहा, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए, लेकिन प्लीज उसके वो बेस देखिए, पे रोज प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसीलिए है ताकि आप लोग रोज प्रैक्टिस करें। ये वंस इन अ वाइल वाली एक्टिविटी नहीं है।
हाँ परफेक्ट, बिकॉज ये जो एक्टिविटी हम लोग आपको सिखा रहे हैं या फिर एडवांस लेवल पे भी लेके जा रहे हैं, जैसे बिगनर है आज इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, ये इसीलिए लेके जा रहे हैं कि आप लोगों का ही अनुरोध था कि सर अभी नेक्स्ट वीक आप क्या सिखाओगे, नेक्स्ट वीक क्या सिखाओगे। तो इधर हमें भी प्रेशर रहता है कि आप लोगों को नया चाहिए हर बार, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड जो स्टडी हमने की थी वो छोड़ना है हमें, वो भी प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ में आपको जो न्यू सीखेंगे आप उसको भी आपको ऐड करना है, ठीक है। बिल्कुल। अब वो जो मैंने बेसिक बोला वो एक्चुअली बेसिक नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे लेवल्स में उसको काउंट करना है इसलिए मुझे बेसिक बोलना पड़ता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है बेसिक है तो छोड़ो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन वो बेसिक है उसका भी बहुत फायदा होता है ना। और जो इंटरमीडिएट आज हम सीखेंगे उसका और ज्यादा फायदा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका कम फायदा है इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे, तो आपको स्टेपिंग स्टोन है, पहले वो लेवल है फिर ये करो, है ना। और आपका जो टाइम रहता है उसको प्रॉपरली डिवाइड करने में आपको काफी यूज होगा वो करने के, इसके लिए कहा था कि वो भी कर दीजिए। बिल्कुल। अब सोहम मेडिटेशन है ना, दिखाने के टाइप में नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक्चुअली कैसे बताऊंगा उसको, थोड़ा ध्यान दे के और काफी कंसंट्रेशन से आप इसको सुनेंगे, ठीक है। बिकॉज ये क्या मेडिटेशन मैंने आपको बताया कि ये किधर है ना, एक जगह बैठ के करने वाली मेडिटेशन नहीं है, लेकिन आप बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि आप बैठ के कैसे करते हो। तो आप कोई भी आप नॉर्मल जैसे आप चेयर पे बैठे हो चेयर पे बैठ जाइए, रिलैक्स्ड हो जाइए एकदम, ठीक है। और एक्चुअली ये मेडिटेशन है ना बहुत चैलेंजिंग है सिखाने के लिए, तो क्योंकि ना लोगों को लगा रहे कुछ सीखा है कि नहीं हमने, क्योंकि जब सीखना है मतलब कुछ करना होता है लोगों को कुछ तो, ठीक है। तो थोड़ा बिल्कुल। मेरे लिए चैलेंजिंग होगी अभी मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, एक कार्डिनल रूल आप ये पकड़ लीजिए कि आपको ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा फेसिंग टुवर्ड्स अप हमेशा रखनी है। नॉर्मल पालसी मैट के बैठो, चेयर पे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, ठीक है, कोई भी आसन में बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज्रासन में बैठो, है ना, स्वस्तिकासन में बैठो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप बैठोगे तो ये ज्ञान मुद्रा लेके बैठो, ठीक है। बिल्कुल और सर। ये ज्ञान मुद्रा आपने आप थाइस पे रख सकते हो, नीज पे रेस्ट कर सकते हो। और जब भी आप बैठोगे तो सबसे पहले बात, जब बैठोगे तो 2 या 3 बार आप पहले डीप ब्रीदिंग कर लोगे, ठीक है। और डीप ब्रीदिंग जब भी करोगे तो आवाज नहीं आनी चाहिए, कि याद रखो चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, एकदम टेंशन नहीं रहना चाहिए, ऐसा 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 कुछ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये बिकॉज जब हम बहुत लोग लोगों करते हैं का इस तरह से टेंशन या ये तरह से हम लोग करते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे बनते जाते हैं, राइट और राइट। स्पेशली लड़कियों के जो लाइंस है वो सब होते जाते हैं। तो खासकर लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों का तो ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं नहीं ठीक किसी है, को वो भी तो नहीं करना आजकल चाहिए, सब मस्ती करे, हाँ। हाँ। तो चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। देखो जब भी आप ये जो बेसिक मेडिटेशन में सिखाए थे और ये जो अभी एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर लड़की हो लड़का हो, ठीक है, बिल्कुल आपको ना बिल्कुल एक्चुअली कोई बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। बहुत आपका नेचुरल जो तरह से ग्लो होता है आपके चेहरे पे, काफी काफी, क्योंकि और है योग ना करने ब्लड से सर्कुलेशन लेवल भी बढ़ता है। योगिक प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो इतने पावरफुल हैं। अगर आप सही ढंग से करो, हर दिन करो, तो ये आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देता है। इंटरनली आपको बहुत क्लीनिंग करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे आपका ग्लो आता है, पुराना जो भी रहेगा वो सब कचरा जो है बॉडी का निकलता जाता है। हम्म। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी सोहम मेडिटेशन से। जी। तो सब लोग एकदम रिलैक्स बैठ जाइए अपने चेयर पे, ठीक है। आज मैं भी चेयर पे ही बैठा हूँ, बिकॉज जब नेक्स्ट वाला रहेगा तो फिर मैं अपने आसन पे आ जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये हम चेयर पे बैठ के ही करेंगे। ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए, हम्म। डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 3 बार, ठीक है। एक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब जब भी हम लोग ये मेडिटेशन करेंगे
आपका जो अभी हमको कोई डीप ब्रीथ नहीं करना है, नॉर्मल आपकी जो ब्रीथ है बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पर। जब भी आप पूरा कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो मन में आपको सो बोलना है। क्या बोलना है आपको मन में? सो। और जब भी आप एक्सहेल करोगे तो आपको बोलना है हम। लेकिन ये दोनों ही चीजें मन में बोलनी है, जोर से नहीं बोलनी है। और सर ये जोर आपको से बोलिए सर, पहले हमको क्या बोलना है? पहले आपको जब आप इनहेल करोगे तो मन में सो बोलना है, सो। सोहम का सो, सो। और जब आप एक्सहेल करोगे तो आपको हम बोलना है, सोहम का हम। तो सो हम, सो हम, सो हम। अभी ये क्या मेडिटेशन है? बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप अभी जब करेंगे आप, तो जब भी आप इनहेल करोगे तो एक है ना साउंड आता है, ये साउंड है ना इतना हल्का रहता है कि आपको है ना जब आप एकदम काम हो जाएंगे तब आपको ये साउंड आएगी इनहेलेशन की। जो इनहेलेशन का साउंड जो है, इट कोइंसाइड्स टू सो। और जब आप एक्सहेल करोगे तो हम, ऐसे एक्सहेलेशन में आता है। लेकिन आवाज नहीं आती है, कि याद रखना, जबरदस्ती नहीं वाली रहती है। ये आपकी नेचुरल ब्रीथ है। इसके लिए सो हम, आई एम दैट, इसका पूरा मतलब होता है आई एम दैट। सो ये मेडिटेशन में क्या होता है, आपको माइंडफुल अवेयरनेस आना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज अगर वो आपको साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो गई, मतलब एक्चुअली यू हैव गॉन वेरी डीप इनसाइड इन योर माइंड। स्टार्टिंग में नहीं जमेगा, ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप इनहेल करोगे तो मन में बोलो सो, और जब आप एक्सहेल करोगे तो हम। ठीक है। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं मन में बोलूंगा और आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेकिन आप मन में बोलना। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी 10 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है जी सर, ये कितनी बार करना है वैसे? ये आप 10 मिनट कर सकते हो। 10 मिनट, ओके। 10 मिनट रेगुलरली के लिए। इसमें ना आपको एक्चुअली डीप ब्रीथ नहीं करना है, आपका नेचुरल ब्रीदिंग करना है। ओके। ठीक है। तो ये कुछ जबरदस्ती वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका मेडिटेशन है जिसमें आपका जो ध्यान है आपका ब्रेथ पे है। तो इनहेलेशन में सो और एक्सहेलेशन में हम। ठीक है। सो आंखें बंद कर लीजिए सारे लोग, ओके। एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाइए। ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, अपने लैप पे रख लीजिए, आइस पे, और एकदम जोर से दबाना वबाना कुछ नहीं, एकदम ना हल्का सा एकदम टच करना है। ठीक है। तो पेन वेन नहीं होगा। ये जो उंगली है ऐसे ऐसे कुछ नहीं करनी, ऐसे ऐसे नहीं करनी, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। स्ट्रेट में स्ट्रेन नहीं करना है, स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा इट इज वेरी इजी मुद्रा, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बिगनर्स है, तो इसी के लिए मैं इतना सब चीज बता रहा हूँ। और फेसिंग टूवर्ड्स अप, पाम अप होना चाहिए। ओके। तो मैं बोलूंगा लेकिन आप मन में करना। ठीक है। जी। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। तो यही चीज जो अभी हमने की है, यही चीज आपको एक रिलैक्स्ड वे में रह के कम से कम 10 मिनट आपको अपने आप को, अपने ब्रेथ को देखना है। जब आप व्हेन यू इनहेल सो एंड व्हेन यू एक्सहेल हम। इट इज वेरी सिंपल। अगर अभी ही किसी को क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो, तो अभी के अभी क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज यस लिख दीजिए कि यू आर क्लियर। सर वी आर क्लियर। या तो प्लीज यूज योर चैट बॉक्स, है ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस। ओके ग्रेट। 10 मिनट्स कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन जैसे आप बिगनर्स हो तो 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। नोज से ही ब्रीदिंग करना है। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इट विल बी ओनली फ्रॉम नोज।
माउथ से ब्रीदिंग नहीं करते हैं। मुझे ना वो वर्ड यूज करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। माउथ से कुत्ता ब्रीथ करता है। तो लॉन्जिटिविटी जो डॉग की होती है आपको भी पता है 10 to 15 ईयर्स की रहती है, ठीक है। राइट। सो माउथ से कभी भी ब्रीथ नहीं करना, इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो राइट। माउथ ब्रीदिंग कभी नहीं करना, हमेशा नाक से ही करना है, ठीक है। तो अभी इसके लिए ना अब मुझे कुछ चीज आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये ना कैथोड है, दिख रहा है सब लोगों को क्लियर? जी जी हाँ, जी। तो ये कैथोड है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी का ना नोज में प्रॉब्लम होता है तो ये एक शुद्धि क्रिया है, जैसे आपने एक नाम लिया था शुद्धि क्रिया का, जो मैंने किया हुआ है। राइट तो राइट हम सर। लोग इसको नाक में से डालते हैं, राइट से लेफ्ट से दोनों। तो जब राइट से डालते हैं मुंह से निकालते हैं एंड देन इट इज क्लियर। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये एक टाइप की शुद्धि क्रिया है। इट शुड बी डन अंडर गाइडेंस ऑफ सम गुरु, ठीक है। तो राइट ये सारी चीजें होती है जो आपके नोज में अगर किसी को प्रॉब्लम है, सांस लेने में होता नहीं है, साइनस का प्रॉब्लम है किसी को, या दुखता है या कुछ भी होता है कि नहीं कर पाते हैं नोज ब्रीदिंग, ठीक है। तो राइट ये सारे टूल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोग यूज राइट करते हैं टू क्लियर आर नोस्ट्रिल्स। तो नोज राइट। पैसेज जो रहते हैं हमेशा क्लियर रहता है। ये होता है ये जल एक्चुअली नेति। योग में ये बताया जाता है। राइट राइट। ये है जल नेति का टूल। तो इसमें पानी भरते हैं हम लोग, एक गुनगुना पानी रहता है, इट इज वेरी लूक वार्म वाटर। और बिल्कुल। नाक में इस तरह के से डाल के एक पोजीशन रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन, और उसमें जब आप राइट में से डालोगे तो लेफ्ट से निकलना चाहिए पानी। ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम लेफ्ट से करेंगे और राइट से निकलेगा। तो इट हेल्प्स यू टू क्लियर योर नोज, ठीक है। तो ये सारे टूल्स यूज करते हैं योग में, एक याद रखो, ठीक है। तो इसके लिए शुद्धि, आपकी जो बॉडी है शुद्धि करते हैं। वमन भी करते हैं, वमन मतलब सीधा उल्टी रहता है, ठीक है। तो राइट ये भी सिखाया जाता है, लेकिन है ना उसके लिए काफी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वमन का एक अलग टाइप होता है ना। राइट तो जो आपका जो स्टमक है वो भी क्लियर होता है, तो अंदर से क्लियर होता है। धोती होती है कि एक कॉटन का कपड़ा डालते हैं पूरा अंदर तक, पेट तक, और बाहर में थोड़ा सा रखते हैं, और फिर बाद में पूरा खींचते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं धोती, ठीक है। ये सारा राइट चीज क्या करता है, ये सारा क्लिनजिंग प्रोसेस है जो योग में सिखाया जाता है। राइट। घर पे ट्राई नहीं करना है, किसी के साथ में रहेगा तो ही आपको ट्राई करना है, अगर कोई योग गुरु है आपके तो। मैं एक्चुअली ऐड करना चाहूंगी सचिन सर, हाँ, ये सारे जो प्रोसेस आपने बताए, जल नीति, सूत्र नीति और हाँ, धातु धोती, नीति, ये सारे धोती, जो हैं ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। मैं हाँ, एक नेचुरोपैथी सेंटर में गई थी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, कुछ हाँ, 12 दिनों के लिए, तो वहां पर हम लोगों राइट, को ये कराया जाता था। तो आपने जो ये जल नीति और सूत्र नीति बताया था, ये सब जो है हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग वो सुबह 5 बजे उठा के, ये सुबह नाक वाला जो था और ये जो गले वाला जो था, ये सुबह हाँ, सुबह हम लोगों को कराया जाता था, और वमन भी हम लोग किया करते थे। उसके ठीक है। पहले बॉडी को प्रिपेयर कराया जाता था। तो यही हम्म, यही योग का जो है, योग का आपको ऐसा है, प्रोसेस रहता है हर एक उसमें। वो हम्म, पूरी तरह से आपको पूरा निकालता जाता है, आपकी बॉडी को पूरा क्लियर करता जाता है, अच्छा करते जाता है, नेचुरल बनाता जाता है। बराबर, राइट। यस राइट। सर। तो ये मैं अभी क्यों दिखाया आपको टूल्स ना, तो आपको थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी आपकी बढ़े, और आपको एक्चुअल ज्ञान आए, ठीक है, कि हम लोग एक्चुअल हमारे डे टू डे लाइफ में ये सारे जो टूल्स यूज करके, ठीक है। अभी पिछले बार जो आपको मुद्राएं बताती थी, अभी जो आपको मैंने एक छोटा सा टूल दिया है सोहम ब्रीदिंग का, ठीक है। सोहम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको हम लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं, बिकॉज आंख बंद करके करनी है। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में आपका काम आएगा। जैसे ही आपका राइट सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, देखो बहुत बार होता है, शायद आपके साथ भी हुआ रहेगा, कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, हमें जाना एक घर पीछे था लेकिन हम एक घर आगे निकल गए या दो घर आगे निकल गए, ठीक है। बिल्कुल ये सब क्या होता है, बिल्कुल। आप माइंडफुल नहीं रहते हैं। बहुत बार हम लोग राइट ऑटोमेटेड ही रहते हैं हमेशा, तो वो राइट। ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी, और हम आगे निकलते रहते हैं। तो ये सारे वो चीजें आपके साथ स्टार्टिंग में ना जैसा हो। मैंने ऐड किया था वही बात कही थी, कि जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है, वो सारा प्रोग्रामिंग हम लोगों को निकालने में योग एक एकमात्र प्रोसेस है, जिससे हम पूरा अपने आप को क्लीन आउट कर सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। राइट। तो इस तरीके से आप ये सोहम मेडिटेशन यूज कीजिए,
और आपके अवेयरनेस को पहले बढ़ाइए। राइट। बहुत ही इजी है। अभी भी अगर किसी को क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, और अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे यस लिख के भेज दीजिए, सो दैट हम आगे जा सके। Yes, we'll go ahead. या मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो माउथ से क्या होता है, देखो जब भी ना किसी ने पूछा है कि माउथ से ब्रीदिंग क्यों नहीं करना है। देखो सबसे पहली बात, जब आप माउथ से ब्रीदिंग करते हो, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस माउथ से ब्रीदिंग करना। आप जब नोज से ब्रीदिंग करते हो, नोज नोज आपके नोस्ट्रिल्स में क्या हो जाता है, अंदर है ना काफी फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस है जो फिल्टर करते हैं। अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है, सबके इसमें रहता है। तो जब भी आप इनहेल करते हो तो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उधर चिपक जाते हैं, तो एयर गेट फिल्टर्ड, ठीक है। अब जब आप नोज से लेते हो तो देर आर टू टाइप्स, अभी हम आगे जाएंगे, लेकिन अभी किसी ने पूछा तो मैं बता देता हूँ कि जब आप राइट से ब्रीथ लेते हो तो वो हॉट एयर जब ब्रीथ लेते हो तो बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है। और जब आप लेफ्ट से लेते हो तो लिटरली आप बहुत कूल कूल हेडेड रहते हो, तो ये कूल ब्रीदिंग होता है, ठीक है, जो अभी हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। हॉट ब्रीदिंग, कूल ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है, या फिर चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, या इगला और पिंगला, तो ये हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पे ही जाने के लिए आपने हेल्प किया है हमें पूछने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, और एक चीज है मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि सब लोगों की एक कैपेसिटी होती है। जैसे जब गाड़ी आप खरीदते हो तो सब लोग एक गाड़ी का क्या देखते हैं, सीसी देखते हैं ना हम लोग, कि गाड़ी का सीसी, इंजन कितना सीसी का है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों के जो इनहेल करने का जो सीसी है, ठीक है, वो 500 सीसी है। बिकॉज जब इनहेलेशन प्रोसेस है वो सीसी में काउंट होता है। इसको आप एमएल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आधा लीटर एमएल, ठीक है। सीसी एक्चुअल टर्म है, बट समझने के लिए हम एमएल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों वर्ड यूज करेंगे, बट एक्चुअल कैपेसिटी पता है आपको? तो जिसको पता है मुझे यस लिख दीजिए, नहीं पता है तो मैं फटक से बता देता हूँ। नहीं सर, नहीं पता मुझे ना पार्टिसिपेंट्स लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो यस, नो तो नो, बट कुछ तो लिखना पड़ेगा। यस, नो आ रहा है। देखो इंटरैक्टिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, मजा भी आता है, ठीक है। बिल्कुल। यस। तो क्या होता है, जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है 4500 सीसी तक लेके जा सकते हैं इसको हम। मतलब इसका देखो आप, हम लोग कितना शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। राइट। अब ये जो 4500 है, ये तो इट इज नॉट द मैक्सिमम कैपेसिटी। ये जब आप करते रहोगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो धीरे 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 आप बढ़ जाओगे। आप मैक्सिमम 5500 सीसी तक लेके जा सकते हो। अभी इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, एडवांटेजेस, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप अभी इतनी शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो तो जो लॉन्जिटिविटी रहता है आपका बहुत कम हो जाएगा। राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में। अब ओल्ड एज, जब पहले ओल्ड एज हम लोग जब बोलते थे तो एक्चुअली वो 60 एंड अबव होता था। आज 40 एंड अबव के बाद में ही ओल्ड एज चालू हो जाता है लोगों का। बिल्कुल सर, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, गैस होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, है ना। सांस लेने होता नहीं है, थोड़ा सा चले तो हाफने लगते हैं, राइट, होता है सब। कभी ट्रैकिंग वैकिंग पे जाते थोड़ा सा चल दिया तो अरे मैं बहुत हाफ रहे है ना, लोगों की हालत खराब हो जाती है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। एक दो राउंड नहीं मार लिया ग्राउंड का तो थक जाते हैं, थोड़ा चल लिया तो थक जाते हैं। ये सारी चीजें ना वहां से क्रिएट हो रही है कि हम लोग बहुत ही शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग लेवल जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। वो सीसी में जब आप काउंट करोगे तो 500, 600, 700, 800, 900, है ना, ऐसे धीरे 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 करके आप, इसीलिए बोलते हैं कि इसको छोड़ो मत, आप इसको करते रहेंगे सालों साल जब आप बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अल्टीमेट जो कैपेसिटी है उसको भी टच कर सकते हैं। इट इज लाइक पॉसिबल टू टच दैट कैपेसिटी एज वेल। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, सबको है ना सांस जो मिली हुई है वो गिनती की मिली हुई है, गिनती की मिली हुई है, ठीक है। गिनती की सांसें हैं।
तो अभी मैं इसको ना आपको एक्चुअल टर्म्स में बता देता हूँ एंड आई विल माटी के कंपेयर बने इट। हुए हैं सर। सर एक हाँ, एक कहावत कहना चाहूंगी, माटी के बने हुए और माटी में ही जाके मर मिटना है। एक राइट दिन हम सबको बस वही माटी में जाना है, राइट माटी ही बनना है। इसीलिए हर दिन थैंक यू बोलिए भगवान जी को सांसों के लिए। राइट। हम लोग काफी ना अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे ब्रेथ को, ठीक है, इसके लिए हम लोग ध्यान भी नहीं देते। बोलो ना, हमको पता ही नहीं हम लोग कितना ब्रेथ लेते हैं एक्चुअली एक मिनट में। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट एक बार आप ना कभी चेक कर लीजिए कि आप एक्चुअल जब आप एक मिनट में कितने ब्रीदिंग्स लेते हैं। मैं आपको एक एवरेज दे देता हूँ, 16 to 18 ब्रेथ होते हैं जो हम लोग एवरेज लेते हैं। राइट। टॉर्टाइस, टॉर्टाइस एक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एक मिनट में करता है। और वाओ। रैबिट, रैबिट 65 से 75 80 इतना टच करता है एक मिनट में। तो आप सबको मालूम है टॉर्टाइस 200 इयर्स 300 इयर्स जीते हैं, और राइट। रैबिट आपको सबको पता है 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स जीते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा था कि मुंह से क्यों नहीं ब्रीथ करना है। तो अगर आपको मुक्ति के द्वार पे जल्दी जाना है तो मुंह से ब्रीथ कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें अगर हमारी लॉन्जिटिविटी बढ़ानी है और वो लॉन्जिटिविटी बढ़ा के हमें बीमार नहीं रहना है, सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ, ठीक है। राइट। तो लॉन्जिटिविटी के लिए तो बहुत सारे गोलियां वोलियां पता नहीं क्या क्या लोगों ने की हुई है आजकल। तो वो सब नहीं करके हम लोग नेचुरल प्रोसेस से हमारी लॉन्जिटिविटी और हम सेहत भी हमारी अच्छी रखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर करेंगे तब जाके हमारी लॉन्जिटिविटी भी बढ़ जाएगी। सो अभी जो हमारा 16 to 18 है, इसको अगर हमने हाफ भी कर दिया, ठीक है, 18 का समझो हम लोग ने 8 कर दिया, वी हैव अचीव्ड द अल्टीमेट एम। मतलब 8 भी कर दिया, राइट। आप सोचो कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ, ये आप जब इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपका ये चीजें जो है एक बार कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो एक्चुअली बार बार सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो योगीज होते हैं वो तो एक एक मिनट में एक ही सांस लेते हैं, और कोई कोई योगीज ने तो 2 मिनट में एक बार सांस लेने का इतना उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया कि वो 2 मिनट में एक बार करते हैं। तो आप सोचो वो क्या अल्टीमेट लेवल पे, इसी के लिए क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जी सकते हैं। और क्या होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है। राइट। जब आप बहुत ज्यादा सांसों का यूज करते हैं तो आपका एनर्जी जो रहता है वो खर्च हो जाती है, और एनर्जी खर्च हो जाती है उसको आपको रिफिल करने के लिए खाते हैं फिर हम, ठीक है, खाते हैं एनर्जी, फिर और एनर्जी को रिफिल कर देते हैं। एक बार रिफिल हो गया वापस से लॉस्ट हो जाता है। तो ये सारे राइट। प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो हम लोग करने वाले मेडिटेशन ब्रीदिंग, तो अनुलोम विलोम इसका नाम है, अनुलोम जी। विलोम प्राणायाम, जी। ठीक है। इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। जी। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही चीज है। जी। इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगा। इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग स्नोरिंग। तो जिसको भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम है रात को, अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। किसी को सर 10 में से 10 ओबेसिटी, लोगों को इसीलिए तो ये मैंने लिया है ना, कि ये राइट। काफी इफेक्टिव है इसके लिए। ओबेसिटी, अब ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, जी। ओबेसिटी तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। किसी राइट। को अर्थराइटिस है तो जी। उसमें भी ये बेनिफिशियल है। हाँ। कॉन्स्टिपेशन है वो भी ट्रीट हो जाता है। किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम्स है तो वो एलर्जी भी, वो बताएंगे हम लोग कैसे, लेकिन एक बार है ना हम लोग बेनिफिट्स हम लोग सुन लेते हैं। क्यों मालूम है कि माइंड को अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बेनिफिट सुना के। एक याद राइट। कीजिए, जो भी हम लोग का प्रोसेस रहता है ना, हम लोग हमेशा माइंड को प्रिपरेशन करके ही हम ये सारी प्रोसेस को यूज करते हैं। राइट। पूरा जो हमारा कंट्रोल है सांसों से ही सब कुछ होता है एक्चुअली। तो बिल्कुल एक सर। बार आपने प्रॉपर सांस लेना स्टार्ट किया, सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है। ब्लड कंट्रोल, ब्लड सर्कुलेशन में आपका अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तो सारी चीजें, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, ये सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है। मस्कुलर सिस्टम्स आपके जो है बिल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। डायबिटिक कंट्रोल में आ जाता है। इससे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, जो जूसेस जो सीक्रेट होते हैं, वो भी काफी अच्छी से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है उनका। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है वो भी क्योर होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी है तो वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है।
ब्रेन लेवल हाई, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है ब्रेन की, और आपका जो हार्ट का जो लेवल रहता है वो आपको हेल्प करता है हेल्दी रखने के लिए, हार्ट हेल्दी रखने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। मैं थोड़ा सा अगर इसको टर्म्स में देखूं तो जब भी आप सांस लेते हो तो जो मात्रा रहती है 79% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन होता है। पूरा का पूरा 21% एब्जॉर्ब हो नहीं पाता, खाली 5% एब्जॉर्ब होता है। राइट। तो 21 में से -5 कर दो, बाकी कहाँ गया? वेस्ट हो गया। जब आप एक्सेल करते हो तो CO2 एक्सेल होता है, नाइट्रोजन साथ में ही चले जाता है, और बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस जो आपके अंदर रहते हैं वो सारे एक्सेल हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप ये करेंगे। तो जो ऑक्सीजन का लेवल मैंने 5% बोला था, उसको हम लोग ने देखा हुआ है कुछ रिसर्च में कि उसको 18% तक एफिशिएंटली यूज किया गया है। वाओ। तो हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ही प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे फिलहाल 5% लेवल पे। तो इसके लिए हमारा ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट। तो हम लोग अभी अनुलोम विलोम, ठीक है, मैं अभी आज एकदम नॉर्मल पोस्चर में बैठा हूँ जी। ठीक है, पालती बैठ के ही, इट इज लाइक नॉर्मल आसन, ठीक है, जो सुखासन बोलते हैं इसको हम लोग, सुखासन में बैठा हूँ। किसी को चाहिए तो वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकता है, किसी को चाहिए तो वो पूर्ण पद्मासन में बैठ सकता है, ठीक है। बट मुझे पता है कि लोगों को पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठने में तकलीफ होगी, और मुझे भी कॉपी करने की बहुत सारी कोशिश होगी, तो मैं भी आज नॉर्मल ही बैठने वाला हूँ जी। ठीक है। अब ये एक चीज है, हैंड्स, ठीक है, इसमें मुद्रा होगी, ठीक है। तो मुद्रा में मैं आपको बताता हूँ कौन सी मुद्रा है। मुद्रा का दो नाम है। एक मुद्रा का जो ये, इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा कैसी होती है, ये देख लीजिए। इस तरीके से आपका ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड में आपका इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ये हो जाएगा नीचे, ये आपका जो रिंग फिंगर है और आपका जो स्मॉल फिंगर है वो सीधा हो जाएगा, और ये आपका थंब है। तो इस तरीके से आपका मुद्रा रहेगी। अब ये आपको मुद्रा थंब से, आपका जो थंब है राइट हैंड का थंब, राइट हैंड के थंब को आपके जो राइट नोस्ट्रिल है उसको प्रेस, जेंटल प्रेस करना है, दबाना नहीं है, और उसको इस तरीके से जोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं फिलहाल अभी कर नहीं रहा हूं तो आपको पूरा बता देता हूं। अब जब भी हम लोग करते हैं तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये जो राइट थंब है इस तरीके से रखना है, ये जो हाथ है वो आपको चेस्ट के करीब रखना है टच करके, और आपको जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लेफ्ट से ही सांस लेने वाले हैं, और ये काफी स्लो सांस रहेगा, इसमें आवाज नहीं आएगी। तो मैं आपको पहले रॉन्ग करके बता देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, और तो ये दोनों ही, खींचने की आवाज नहीं आनी चाहिए, छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। फास्ट करना नहीं है, बहुत ही स्लो करना है, ठीक है। तो ये हाथ ऊपर हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, नाक को बहुत प्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। काफी प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, मैं इसलिए बार बार आपको वही बता रहा हूँ। तो ये आपको राइट हैंड, ये आपका जो है टच रहेगा चेस्ट के करीब, आपका जो थंब है वो आपका जो नोस्ट्रिल से राइट वाला उसको प्रेस होगा जेंटल, और सांस लेंगे हम लोग नॉर्मल, बहुत ही डीप ब्रेथ, लेकिन एकदम स्लोली, ठीक है। तो एक करता हूं मैं, पहले बता देता आपको। तो मैंने अभी ये मेरी सांस भर ली है, ठीक है। तो समझो मेरे को अभी ये 2 सेकंड लगा है लेने में, लेट सपोज। तो मैं जब भी इसको छोड़ूंगा तो अभी मैंने आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, राइट नोस्ट्रल दबा के मैंने लेफ्ट से लिया था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 उंगली है लास्ट की, ठीक है, उसको मैं अभी क्या करूंगा, उसको मेरे लेफ्ट नोस्ट्रल में दबाऊंगा, ठीक है। और फिर जो मैंने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया था, अभी मेरा एक्सेलेशन राइट से रहेगा। तो एक्सेलेशन के लिए 4 सेकंड होना चाहिए, मतलब इट शुड बी डबल द टाइम ऑफ इनहेलेशन। तो अगर मुझे 2 सेकंड लगा इनहेल करने के लिए, तो 4 सेकंड लगेगा एक्सहेल करने के लिए।
कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर जल्दी हो गया तो, बट ये एक्चुअल प्रोसेस है, मैं आपको बता के रख रहा हूँ। तो यही तो हमको अचीव करना है। तो किसी को 3 सेकंड लग रहा है इनहेल करने के लिए, तो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड ट्राई कीजिए, जितना ज्यादा टाइम लगे एक्सहेलेशन के लिए। ठीक है, जब भी आप ये इनहेल एक्सहेल करोगे, ठीक है, तो ये जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा काफी आराम से करना है। ये कोई भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, इट इज अ नॉर्मल अनुलोम विलोम। तो ये हम लोगों को माइंड को काम होने में, माइंड को शांत रखने के लिए काफी मदद करेगा। और ये जो सारी मैंने बेनिफिट्स बताई, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और आप राइट करो। प्रणव मुद्रा काफी इसमें आपको कागिर रहेगी। ठीक है, तो प्रणव मुद्रा ही लेके करना है। बहुत लोग क्या करते, कुछ भी करते हैं। अभी जैसे टीवी में मैंने देखा था, तो एक ने तो ये थंब को इस तरीके से जोड़ लिया और ये थंब को ऐसा करके ये हाथ ऊपर करके चालू था। इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने, सारे लोगों ने रॉन्ग बताया हुआ है। ये मुद्रा काफी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मुद्रा वापस दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये ऐसे है, इस तरीके से रहेगा, दोनों जॉइंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 10 बार कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या करता हूँ, हम लोग जब भी इनहेल करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, और जब भी हम लोग क्लोज करेंगे, तो जो एक्सेलेशन पार्ट रहेगा वो भी आपका लेफ्ट से ही रहेगा। लास्ट में जब हम लोग बंद करेंगे, तो चंद्र नाड़ी से हम लोग लेंगे। चंद्र नाड़ी इज योर लेफ्ट, तो चंद्र नाड़ी से ही इनहेल करेंगे। और लास्ट में जब हम लोग क्लोज करते टाइम क्लोज करेंगे, तो एक्सेलेशन भी हमारा जो क्लोजिंग टाइम रहेगा वो भी हमारा चंद्र नाड़ी से ही रहेगा। अब मैं चंद्र नाड़ी क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज शाम का टाइम है, हम लोगों को अभी जो एनर्जी है कूल वाली चाहिए, कूल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए अभी चंद्र नाड़ी, ये अगर सुबह अगर आपको पोजिशंस करनी है, तो आप उसको राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो राइट से स्टार्ट करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड की जो मुद्रा रहेगी, इट शुड बी ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में आपको इधर रखना है आपके, और इस तरीके से हैंड शुड बी दिस ज्ञान मुद्रा में। तो लेफ्ट हैंड आपका इधर ही रहेगा, आपके थाइस पे। ठीक है, नी के इधर, और आपको खाली राइट हैंड ही यूज करना है। ठीक है जी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी एक बार बता दीजिए ना, कौन सा हाँ, है लेफ्ट तो और राइट वाला राइट? जो है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट वाला जो है चंद्र नाड़ी है। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट से, ये एक्चुअली साइंटिफिक में कुछ भी इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई भी आप कहाँ से भी लो तो वो उनको लिए नॉर्मल है। लेकिन हमारे इसमें क्या किया गया है कि बताया गया है, प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। तो इसमें बताया गया है कि आप जब भी हम लोग लेफ्ट से सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है कूल, चंद्र नाड़ी, तो कूलिंग होता है बॉडी की। और जब हम लोग राइट से लेते हैं, तो वो हीट करता है। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल ही चालू है, एक ही चालू रहती है दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो राइट वाली चालू है, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल होने ही नहीं वाला है। मतलब पढ़ाई करने के लिए कूल माइंड चाहिए रहता है। तो उस टाइम पे आप ये वाला एक्सरसाइज करके आप फिर पढ़ाई के लिए बैठ सकते हो, चंद्र नाड़ी की स्टार्ट करके, तो उधर आपकी चंद्र नाड़ी खुल जाए। यही अगर आपको जॉगिंग करना है, तो अगर लेफ्ट वाला चालू है, ठीक है, तो फिर आपका जॉगिंग या वो चीजें, वो सारी चीजें नहीं होगी। तो इसके लिए आपको राइट वाला यूज करना है। अभी फिलहाल हम लोग लेफ्ट वाला यूज करें, चंद्र नाड़ी। तो कुछ भी हैवी वर्कआउट्स करना है, कुछ करना है, तो राइट वाला आपका चलना चाहिए, नॉस्ट्रिल। और कुछ भी आपको कूल काम करना है, बैठ के रिलैक्सेशन, तो लेफ्ट वाला होना चाहिए। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड एज वेल। तो अगर राइट वाला चालू, आपको लेफ्ट चालू करना है, तो आप ये यूज करके आप लेफ्ट वाला भी चालू करवा सकते हो। इट इज वेरी इजी, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, अभी इतना कोई ध्यान देता नहीं, लेकिन आपको बता के रख रहा हूँ आगे फ्यूचर के लिए आपको। तो अभी हम लोग 10 टाइम्स करते हैं इसको। जी। ठीक है, तो विल टेक फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल किया अभी, और मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया है, और एक्सेलेशन फ्रॉम राइट। अभी मैं इनहेल करूंगा राइट से, और अभी एक्सेल कर रहा हूं लेफ्ट से। अब ये कंप्लीट प्रोसेस 1 में काउंट होता है। जी।
ठीक है, तो पहले हम लोग ने इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सेल किया राइट से, इनहेल किया राइट से और एक्सेल किया लेफ्ट से। ये कंप्लीट एक साइकिल है। ठीक है, वापस से अभी हम लोग लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। अभी राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। वापस से लेफ्ट से लेंगे, इनहेल और एक्सेल करेंगे राइट से। वापस से इनहेल करेंगे राइट से और एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करेंगे राइट से, लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करेंगे राइट लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है अभी पूछ सकता है। होप आई एम क्लियर। इनहेलेशन लेफ्ट से करना है, एक्सेलेशन राइट से, और वापस से राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेलेशन करना है। ये हो गया आपका कंप्लीट साइकिल 1 जी। टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस एक्सरसाइज। देखो अभी स्टार्टिंग है तो मेरे हिसाब से आप 10 टाइम्स कीजिए। अगर 10 टाइम्स में भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो इट इज इफेक्टिव, आप उसको खींच सकते हो, तो 15 टाइम्स तक लेके जाइए। बिकॉज क्या हो रहा है ना, आई कैन नॉट टाइम फॉर अदर। सबका है ना बॉडी स्टाइल अलग है, एज ब्रैकेट अलग है, किसी को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है आई डोंट नो। ठीक है, जो अभी नया पहली बार कर रहा है, पहली बार स्टार्ट किया है उसने, तो वो 10 टाइम्स ही करे, वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे। और जो लोग करते आ रहे हैं, दे कैन डू फॉर 5-10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, एज पर देयर कन्वीनियंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी कि आप लोगों का जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। यू हैव टू सिट अपराइट स्ट्रेट। तो इसी के लिए मैंने जो आपको कहा था कि अगर आप पद्मासन में बैठते तो आपका जो गर्दन, नेक झुकना नहीं चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए। बिकॉज अभी मेरे को आपको समझाना है तो उस तरीके से मेरा बॉडी पोस्चर है, बट इट शुड बी, स्पाइन शुड बी वेरी इरेक्ट। ठीक है, चेयर पे भी बैठेंगे तो एकदम इरेक्ट रखो, सामने देखो, सामने देखेंगे, गर्दन सामने रहेगा, गर्दन झुकेगा नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, ऊपर भी नहीं। बहुत लोग, अभी मैं गलत करके दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत लोग गलत कैसे करते हैं। तो ये जो मुद्रा है मैंने वापस ले ली है। ठीक है, अभी ऐसे लेंगे और छोड़ेंगे। ये जो मुंडी और पूरा जो हिलता है ना, तो ये सब नहीं करना है। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये कैसे मेरे को आइडिया आया कि मेरे को ये आपको सिखाना है। मैं जब पार्क में जा रहा था, बहुत लोगों को देखा था मैंने कि उन्होंने जो मुद्रा भी ली थी, गलत ली थी, और लेफ्ट वाला कर रहा था। मतलब पहले राइट का हो गया, फिर लेफ्ट का राइट का, मतलब दोनों से क्या कबड्डी खेल रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, अरे मुझे आता है, मुझे उनको ना, हर बार क्या होता था ना कि मुझे जा जाके उनको सिखाना पड़ता था कि अरे सर प्लीज आप ऐसे गलत मत कीजिए, गलत पहले गलत का ना उल्टा, जो अभी हम लोग को बेनिफिट मिल रहे हैं तो नुकसान होना स्टार्ट होएगा। तो हम लोगों को इसके लिए गलत नहीं करना। इसके लिए मैं गलत भी बता रहा हूँ आपको कि गलत कैसे करते हैं लोग।
ठीक है। तो ऐसे ऊपर लिया, सांस लिया, जोर से लिया, आवाज आ रही है, जोर जोर से सांस की, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो काफी हल्का ब्रीदिंग करना है, जितना एट अ टाइम खींच सकते हो उतना खींचो, और पहले चेक करो सेकंड्स में कि कितना सेकंड्स लग रहा है, उसका डबल सेकंड्स छोड़ने में। स्टार्टिंग में इजी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट ठीक है, आप ट्राई कीजिए डबल द टाइम एक्सेलेशन के लिए। यही तो हमारा होमवर्क है इसमें, राइट। ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। आई थिंक 7 o'clock हो गया है पूजा। अगर किसी के जी क्वेश्चन जी जी, आंसर तो वी शुड टेक Q&A। वी वी आर विल डन, टेक वी आर Q&A। डन, हाँ या वी आर डन। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हाँ अगर आप लोग सही नहीं करोगे हाँ अनुलोम विलोम या कोई भी तरह का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप पहले आपका पोस्चर और जो आपको बताया गया है उसको पूरे ध्यान से कीजिए, उसको पूरे ध्यान से देख के कीजिए। वहां गलतियां करोगे आप तो फिर आप आगे चल के आपको उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्लीज आप मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत ध्यान से देख करके सब चीजें कर रहे हैं। ठीक। तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स को कुछ सवाल जवाब करना है वो अपना चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस कुछ भी आपको पूछने हैं तो। व्हाट साइड इफेक्ट? जी जी साइड जी इफेक्ट सर, जो जो प्लीज। मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया था, लाइक इट ट्रीट स्नोरिंग, स्नोरिंग होना स्टार्ट होगा। ओबेसिटी नहीं है, ओबेसिटी चले जाती है राइट करने से, रॉन्ग करेंगे ओबेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो जो बेनिफिट्स है, अर्थराइटिस किसी को है जो यूज कर रहा है, ठीक है, वो और बढ़ जाएगा। किसी को ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो चला जाता है धीरे धीरे, वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो जो आपको है एग्जिस्टिंग में, वो उसको बढ़ावा कर देगा, वो आपके लिए साइड इफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये एकदम इजीली है, आपको पता चल जाएगा आप रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। स्टैमरिंग में किसी ने पूछा स्टैमरिंग में भी इफेक्टिव है क्या? तो स्टैमरिंग में मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज में ये इफेक्टिव है। अनुलोम विलोम के हंड्रेड बेनिफिट्स है, मैं सारी चीजें नहीं बता सकता, पर हर एक चीज में देखो, जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो सांसों से ही होता है। अगर गलत आपने सांस लेना सीखा है बचपन से, ठीक है, तो वो गलत सांस लेने का ही प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो अभी नॉर्मल में वापस से पिछले बार एग्जांपल देता, अभी मैं फिर से देना चाहूंगा गलत क्या होता है। कि बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने बलून का एग्जांपल लिया था, जब भी आप एक्चुअली सांस लेते हो तो आपका जो डायफ्राम है बाहर आना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मेरा अंदर जाता है, तो ये रॉन्ग वे है सांस लेने का। तो डायफ्राम बढ़ना चाहिए, एक्सेलेशन के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हाथ रख सकते हो आपके पेट के इधर और चेक कर सकते हो जब आप सांस ले रहे हो तो एक्चुअली क्या हो रहा है। कि सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम बढ़ना चाहिए, जैसे बलून में हम लोग एयर डालते हैं तो फूकता है वो, राइट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो फूकना ही चाहिए, दैट इज नेचुरल। और जैसे ही वो हम हवा निकाल देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वैसे ही हमारा ये भी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, बट ये नॉर्मल है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आपने ना किसी को, बच्चे लोगों को अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो सबसे बेस्ट डायफ्राम ब्रीदिंग जो करते हैं वो बच्चे लोग करते हैं। उनका देखो पेट कैसे हिलता रहता है, तो जैसे वो सांस लेते बढ़ जाता है, सांस छोड़ देते कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो काफी हिलता है वहां पे ना। और बच्चे लोग क्या होता है ना, हम लोगों के जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती है, वो काफी ज्यादा ब्रीदिंग करते हैं 1 सेकंड में। तो उनका ब्रीदिंग काफी फास्ट रहता है, हैवी ब्रीदिंग रहता है, 40-50 ब्रीदिंग रहता है 1 मिनट में। मतलब बचपन में वो उनको वो जरूरत रहता है उतना। और जैसे जैसे हम एडल्ट होते रहते हैं तो हमारा एक 16-18 के करीब में वो एक एवरेज तैयार हो जाता है। जिसको स्ट्रेस है उसका 25, 26, 30 ऐसे लेवल पे रहेगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस है? बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज चेक कीजिए कि 1 मिनट में आप कितने बार, और जबरदस्ती नहीं लेनी है सांसें, खाली चेक करना है कि 1 मिनट में कितनी सांस आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये आप चेक कीजिए, ये होमवर्क है आपके लिए। अगर मोर देन 25 आता है, यू आर इनटू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर 40 अबोव है तो ये एंजाइटी का हायर लेवल है। 50 है तो बस आपको डॉक्टर की जरूरत है, योग गुरु की बहुत जरूरत है। तो 25 एंड अबोव है तो आप 24-30 के बीच में घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये इसको नॉर्मल यूज करते रहिए और उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कीजिए कम से कम।
ठीक है, ये पैरामीटर कोई साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस और हमारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने ये जाना है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपका क्वेश्चन टाइप करके, और सर का जो फोन नंबर है वो डाल दिया गया है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे वीडियो ना कॉल आप करके कर व्हाट्सएप पे सकते हैं। प्री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, एक 5-10 मिनट्स का हम एक वीडियो चैट कर सकते हैं और मैं आपको 1-to-1 बता सकता हूँ। जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए मैंने पहले ही कहा था, जो एक्टिव रहेंगे उनको सरप्राइज है लास्ट में। तो ये सरप्राइज है मेरी तरफ से कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब रॉन्ग करते हैं तो उनको समझता नहीं रॉन्ग है वो, है ना। अब ऑनलाइन में मैं तो आपको राइट बता रहा हूँ, मैंने रॉन्ग भी बता दिया है, बट नॉर्मली क्या होता है जब हम करते हैं तो मेरे को कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला होगा तो वो मुझे बता सकता है राइट है रॉन्ग। तो ये राइट। आप सामने वाले को ये जो वीडियो है जब इसका रिकॉर्डिंग रिलीज होगा तो किसी को आप अपने बाजू में बिठाइए, ठीक है, और उसको पहले उसको भी दिखाइए, और जब आप करोगे तो इस तरीके से एक दूसरे का आप हेल्प कर सकते हो। मम्मी है, डैडी है ना, आप उनको ये दिखाइए वीडियोस और उनको ये दिखाइए, तो एक बार उनको राइट मालूम पड़ जाएगा, तो जब आप करोगे तो वो दे कैन करेक्ट यू। इट इज वेरी सिंपल। बट क्या होता है ना, आपको नहीं पता चलता है बहुत बार, ना मैं बोला ना आपको, ये हाथ ऊपर हो जाता है या ये लेवल से ऊपर हो जाता है, तो ये हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हाथ इस तरीके से चेस्ट के तरफ ही होना चाहिए। ये हम लोग प्रणव मुद्रा इस तरीके से लेते हैं, ये इस तरीके से ये रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, स्ट्रेट करना नहीं, ऐसा नहीं है, दर्द वर्द होगा बहुत लोगों का, मैंने देखा है कि ये प्रणव मुद्रा भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो किसी को नहीं हो रहा है प्रणव मुद्रा लेना, ये मुद्रा लेनी जरूरी है, ट्राई कीजिए रोज ये मुद्रा का प्रैक्टिस करने के लिए, दबाना नहीं है ना। इस तरीके से आपको धीरे से आपको खाली रखना है, जब सांस लेते हो तो ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है, गर्दन सीधी रखनी है, सामने देखना है, आंख बंद रखनी है, और धीरे से आपको इनहेल करना है। आपको ना आवाज भी नहीं आनी चाहिए इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, और ये कंप्लीटली स्लो प्रोसेस है। इसी के लिए मैंने कहा था अगर 2 सेकंड लग रहा है आपको इनहेल करने के लिए तो एक्सहेल करने के लिए 4 सेकंड होना चाहिए, तो 1:2 का रेशो रहेगा, और धीरे धीरे आपका इनहेलेशन भी बढ़ेगा। तो जिसका शैलो ब्रीदिंग है उसका 1 सेकंड 2 सेकंड ही रहेगा, फिर आप धीरे धीरे उसको 3 सेकंड 4 सेकंड तक लेके जा सकते हो। तो 3 सेकंड होगा तो 6 सेकंड एक्सेलेशन, 4 सेकंड इनहेलेशन, 8 सेकंड एक्सेलेशन, इस तरीके से करना है आपको। तो पहले ये बिगनर लेवल है ना, ये अगर आपने प्रॉपर करना स्टार्ट कर लिया तो आप फिर जो एडवांस लेवल के लिए आप योग गुरु को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, एंड देन दे कैन टीच यू द एडवांस पार्ट एज वेल। तो लेकिन जी पिछला वीडियो जो है आप वापस से देखिए, वो वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन आप जब यूज करेंगे, ठीक जी है, तो काफी इफेक्टिव रहेगा। ये दोनों को किलिंग कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग। ये दोनों अगर आपने किया, आपका सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि आपका चेहरा ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से काफी एनर्जी रहेगी बॉडी में, थकावट नहीं रहेगा, लेजीनेस बिल्कुल चला जाएगा, कंप्लीटली इट विल बी वाइप्ड ऑफ। मैं समझ सकता हूँ अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में है तो काफी एक्टिविटीज बहुत ही लो है लोगों की, है ना। राइट। बाहर आप जॉग पे जा नहीं सकते हो, पार्क में जा नहीं सकते हो, ठीक है, बिकॉज फिर वो उल्लंघन होगा लॉकडाउन का। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ये एक्सरसाइज कीजिए घर में ही, आपकी एनर्जी लेवल्स को आप अप कीजिए, तो क्या होगा उस तरीके से आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, और ये सारी एनर्जीज आपको सुस्त बैठने नहीं देगी, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते ही रहोगे। फिर तो वो एक्टिविटी के लिए आपको है ना, आपके लिए ताकत जो एनर्जी है, ये सारे जो एक्सरसाइज है ये आपको देंगे, और ये करते करते ही आपके जो डिजीज भी रहेंगे वो चले जाएंगे, राइट। आपका माइंड शार्प होगा, ब्रेन शार्प होगा, तो और क्या चाहिए। राइट। सो हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। एब्सोल्युटली। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर में, हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी आती है, और जो दूसरे तरीके से जो हम लोगों को एनर्जी रहती है या हमारी जो बॉडी जो है वो बराबर से चलती है, विच इज ब्रेथ। तो ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, हम लोग जब बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो प्राणायाम हम लोग इसीलिए कहते हैं, मेडिटेशन इसीलिए कहते हैं, रोज करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ब्रेथ से चलता है, जिसके वजह से ये पूरी एक्टिविटी करी गई है पूरी तरह से। राइट। अच्छा, किसी ने, सबसे सुनील जी ने बेस्ट पूछा टाइम है है, हाँ व्हाट हाँ हाँ, टाइम। बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग नहीं जमता है तो आप इवनिंग का टाइम भी कर सकते हो, बट ये इवनिंग का टाइम कब होना चाहिए
कि आपने कुछ भी हैवी मील नहीं लिया हो। राइट। इसी के लिए हमने ये 6 o'clock का टाइमिंग लिया रहता है कि किसी ने 1 या 2 बजे खाना खाया रहता है तो नॉर्मली 3-4 घंटे में वो डाइजेस्ट के ऑलमोस्ट डाइजेशन हो गया रहता है या तो ऑलमोस्ट एंड प्रोसेस में रहता है, ठीक है। राइट। तो आपके स्टमक एक्चुअली लिटरली एम्प्टी ही रहता है। या फिर किसी ने राइट। चाय पी ली हो या थोड़ा सा स्नैक्स खा लिया चाय के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज लाइट। तो बस उतना ही ख्याल रखिए कि ये आप सोते टाइम ना कीजिए, बिकॉज सोते टाइम क्या होता है, मैंने देखा है बहुत लोग तो बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, है ना। तो किसी ने अगर 10 बजे खाना खाया है तो फिर आप थोड़ी 1 बजे तक रुकेंगे या 2 बजे तक रुकेंगे ये एक्सरसाइज करके फिर सोने के लिए। इसके लिए रात में मना करते हैं। तो इसी के लिए बेस्ट रहेगा आप इसको मॉर्निंग में कीजिए उठते उठते ही, या तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो मुद्रा वाले, वो आप मॉर्निंग में कर लीजिए तो इससे आपको एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी। और इवनिंग में ये वाला कर लीजिए तो आपका जो रिलैक्सेशन रहेगा, माइंड का रिलैक्सेशन, ये दोनों आप बाजू में काम कर लेंगे तो सुबह का एनर्जी भी आपके हाथ में आ जाएगा और शाम का जो इवनिंग का जो कूलनेस चाहिए रहता है, दिमाग शांत। कोई बहुत लोग ऑफिस से आएंगे, है ना, तो उन लोगों को बहुत चिड़चिड़ रहती है, बहुत एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, इतना ट्रैवलिंग कर करके लोग घर पे आते हैं। तो ये आप अगर 5-10 मिनट भी कर लेंगे तो काफी हो जाएगा आपको कूल रखने के लिए। राइट। Okay, I think it's all clear now. या So, thank you, Sachin sir, to enlighten us, to actually give us the right breathing technique. आज आपने बहुत ही important चीजें कवर कर दी है। आज आपने दो चीजें कवर की, एक तो आपने सोहम मंत्र हमको बताया और दूसरा राइट आपने हमको अनुलोम विलोम सही टेक्निक से कैसे करना चाहिए वो पूरा एक्सप्लेन किया। और आपने राइट हमको पूरा बाकी भी इंफॉर्मेशन दिया योग के बारे में कि कौन सी नीतियां होती हैं, जल नीति, सूत्र नीति राइट और बाकी नीतियां। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू to do this for us. Thank you. And special thanks to Fani Vijay, who has helped me with all the technical setup. लॉकडाउन के दौरान ये एहसास कि जो कुछ भी है, लॉकडाउन के दौरान ये एहसास कि जो कुछ भी है मेरे पास गौर से देखो। लॉकडाउन के दौरान ये एहसास कि जो कुछ भी है मेरे पास ये गौर से देखो। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे रहने दीजिए, मैं खुश हूं। गौर तो कीजिए, दुनिया अब भी हसीन है। सर पे छत है, रसोई में खाना है, नीचे जमीन है। उनसे पूछिए जिनके पास ये भी नहीं, उनसे पूछिए जिनके पास 100 में से कुछ भी नहीं। हमारा 50% भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सर पे छत है, नीचे जमीन है, गौर से देखिए, दुनिया अब भी हसीन है। अभी आप सब एक लिस्ट बनाइए। अब यहाँ से जाने के बाद आप सब एक घर पे लिस्ट बनाइए, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास फैमिली है, आपके लोग हैं, आपका हेल्थ है, वेल्थ है, मनी, कार्ड, सिक्योरिटी, यहाँ तक कि खाना, इवन आपका जो बचा कुचा बिजनेस है, जॉब है, जहां से भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो सब है। ये ये सब का आप शुक्र मनाइए। अब इस सब का शुक्र मनाते हैं और जिंदगी को इस लॉकडाउन के बावजूद आगे बढ़ाते हैं। See, gratitude is one of the most powerful tool to attract more. ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास सिचुएशंस लॉकडाउन के दौरान बहुत ही खराब हैं। आई थिंक वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम सब के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है भगवान की। तो हम सबको एक काम छोटा सा करना चाहिए आज। एक पेपर पेन लेकर के सारे ब्लेसिंग्स जो है लिस्ट डाउन कर दीजिए, जिन भी चीजों के लिए आपके पास है, और वो अपने आप के अंदर में आप शुक्र मनाइए। Yeah, this is a gratitude exercise I do every day. So thank Yes. you, Pooja, for giving this opportunity, this platform to me, so that I can reach to many people and I can teach right breathing exercises. Thank you. Right. Thank you, Fani, for technical help which you have done with Pooja. And thank you to all the participants who have participated. This is the prime time you have given to us, and I'm really grateful to you all. Thank you very much. Thank you to all the participants for coming down and actually participating. And thank you for your time. Thank you all. So we are Thank you ending all. the meeting.
Thank you. Yeah.